Good morning, students. Welcome to social science class. How are you all? I hope you all are fit and fine. Yes, students, in our previous lecture, we have discussed about the natural resources. Those are land, soil and water. Firstly, we have discussed about the land and its uses. Right? Today we are going to discuss about soil. So what is soil? Soil is the loose surface material that we found on earth. अर्थ के सरफेस पे जो लूज मटेरियल है that is soil. It is the combination of organic and inorganic matter. Organic matter includes the dead and decomposed parts of animals and plants. Organic matter में हम किसको include करते हैं? वो चीज़ें जिनमें कभी लाइफ थी. Those are dead and decomposed part of animals and plants, and they were called as humus, right? And in inorganic components, these are the rock particles, minerals. Okay, so let's start our topic, soil resource. A large part of Earth's surface is covered with soil. Soil is of immense value to the farmers. Agriculture production is mainly depend upon the fertility of soil. Rich and deep soil cover with a high degree of fertility favors agricultural production. On the other hand, if the soil cover is shallow and lacks fertility, agricultural production will be less. Therefore, a thick layer of fertile soil is very important for the growth of plants. Soil is very much important to us. It is good for agricultural work. हमें सॉइल बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंस है सॉइल की, और ये मेनली हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और वर्क. सॉइल जितनी ज़्यादा रिच होगी, मीन्स जितनी फर्टाइल होगी और जितनी उसकी डेप्थ होगी, जितना उसका डेंस होगी जितनी सॉइल, उतना ही ज़्यादा वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में हेल्प करेगी. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज मेनली डिपेंड अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. फर्टिलिटी मीन्स it is good in minerals, it is rich in minerals. उपजाऊ जिसको हम बोलते हैं. तो जितना सॉइल फर्टाइल होगी उतना ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन होगी उसमें क्रॉप्स की. रिच एंड डीप सॉइल कवर विद हाई डिग्री ऑफ फर्टिलिटी फेवर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. जितनी ज़्यादा रिच होगी, डीप होगी, जितना थिक होगा उस सॉइल कवर, उतना ही ज़्यादा वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में हेल्प करेगी. ऑन द अदर हैंड, इफ़ द सॉइल कवर इज शैलो, शैलो मीन्स थिन, कम होगा सॉइल. ओके. और दूसरी तरफ अगर सॉइल कवर थिन है, ज़्यादा थिक सॉइल नहीं है, तो क्या होगा? फर्टिलिटी भी नहीं है, तो
agricultural production will be less. If soil is not fertile and it is not thick, then agricultural activities or production will be less. Thick layer of fertile soil is very important for the growth of plants. थिक लेयर और फर्टाइल लेयर के अच्छी लेयर हो सॉइल की, थिन लेयर ना हो, एक थिक लेयर कवर हो सॉइल कवर, और फर्टिलिटी जितनी ज़्यादा फर्टाइल होगी उतना ही अच्छा वो प्लांट्स के लिए होगा एंड प्लांट्स कैन ग्रो प्रॉपरली इन दैट सॉइल. Indirectly, animals also depend upon the soil to satisfy their basic needs as soil gives nutrient to plants. It gives shelter to insects and animals like rats, snakes, ants, earthworms, etc. Animals also depend on soil to fulfill their basic needs. Firstly, soil provide nutrients to plants. Soil plants को nutrients देते हैं to grow. Plants नाइट्रोजन लेते हैं soil से और other minerals जो उन्हें चाहिए वो soil से collect करते हैं. Okay? और animals, it gives shelter to animals and insects. Soil जो है वो एनिमल्स और इंसेक्ट्स को शेल्टर यानी कि हैबिटेट देती है, उनका घर बनाते हैं वो सॉइल में. ओके, जैसे रैट, स्नेक, एंट, ये सब सॉइल में अपना घर बनाते हैं. इट गिव्स शेल्टर टू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स. सॉइल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड पोट्री. पोट्री मीन्स जो हम मिट्टी के बर्तन देखते हैं. Soil also used for making pottery and bricks. ब्रिक्स बनाने में काम आती है और मिट्टी के बर्तन पोट्री के लिए यूज़ की जाती है. ठीक है, तो सॉइल कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है, वी कैन जस्ट फील दैट कि हमें सॉइल एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए. वी नीड सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स और पोट्री. एनिमल्स आर ऑल्सो डिपेंड ऑन सॉइल. दे नीड सॉइल फॉर शेल्टर. प्लांट्स कैन ग्रो इन सॉइल ओनली. दे टेक न्यूट्रिएंट्स, दे टेक वाटर, nitrogen from soil. So soil is very much important for farmers as well as animals, plants. Okay, so how soil formed? Soil formation is influenced by 5 factors: the parent rock, the topography, the climate, vegetation cover, and time. There are the 5 factors: parent rock, climate, vegetation, topography, and time. These are the 5 factors that plays an important role in the formation of soil. So let's discuss it. Firstly, there is parent rock. We all know about parent rock. Which is parent rock? The rock from which the soil is formed. Very good. Okay, the original rock from which soil is formed by the process of weathering is known as parent rock. We have already read about the weathering in class 7th. What is weathering? Weathering is breaking of rock.
ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, जो क्लाइमेट के कारण, टेम्परेचर के हाई या लो होने के कारण, रेनफॉल के कारण रॉक्स ब्रेक हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। ओके, तो पेरेंट रॉक कौन सी रॉक है? वो ओरिजिनल रॉक जो सॉइल फॉर्म करती है बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के प्रोसेस से इज नोन एज पेरेंट रॉक। ओके, फॉर एग्जाम्पल द ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लावा रॉक। जो हम ब्लैक सॉइल देखते हैं इंडिया में, दैट इज गुड फॉर कॉटन ग्रोइंग, इज फॉर्म्ड बाय द लावा रॉक। वो किससे फॉर्म हुई है? लावा रॉक से। ओके, सो आई होप पेरेंट रॉक इज क्लियर टू यू ऑल। पेरेंट रॉक मीन्स वो मेन रॉक जिससे सॉइल फॉर्म हुई है। ओके, नाउ सेकेंड इज टोपोग्राफी। Topographical variations such as mountains, plateaus, plain affect the thickness of soil cover. So first question is, what is topography? Topography means the variation in landforms. We have seen different type of landforms: mountains, plains, valleys, plateaus. These are the different type of landforms and these are known as topography. So topographical variations जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं थिकनेस में सॉइल की। In mountain regions, on the steep slopes, the top layer of soil is shallow and thin. Mountainous region में slope स्टीप होती है, माउंटेन इज लाइक दैट। तो इसकी जो स्लोप है, इसकी जो ढलान है वो बहुत स्टीप है एंड द लेयर ऑफ सॉइल इज शैलो। माउंटेन्स पर मैक्सिमम रॉक्स होती हैं और जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। ठीक है, बहुत लेस सॉइल होती है, बहुत शैलो, बहुत थिन लेयर होती है सॉइल की। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया में बहुत ज़्यादा थिकनेस है। व्हेन वी आर डिगिंग द अर्थ, तो वहाँ पे क्या मिलता है? थोड़ा सा डिग करने के बाद हमें रॉक्स मिलती हैं? नो, देयर इज सो मच सॉइल, सो द थिकनेस ऑफ सॉइल इन द प्लेन इज मोर देन द माउंटेन्स। ठीक है, तो सॉइल कवर इज थिक इन प्लेन्स बट थिन इन माउंटेनियस रीजन। ओके, सो दिस इफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन पे क्या इफेक्ट आता है टॉपोग्राफी का, कि जो स्लोप है, इफ इट इज स्टीप, then the layer of soil is thin and in plain areas the soil is very much thick. Okay, let's read again. In mountainous region, on the steep slopes the top layer of soil is shallow and thin. Mountains पर steep slope पर soil thin होती है and on the other hand at gentle slope means प्लेन एरिया में द सॉइल कवर इज थिक एंड डीप। सॉइल बहुत ज़्यादा थिक है और डीप है। सॉइल कवर इज ऑलवेज थिक इन प्लेन्स। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव थिक सॉइल कवर एज कंपेयर टू हिमालयाज। इवन विद इन माउंटेन्स, रिवर वैलीज हैव थिक सॉइल कवर। हिमालयाज़ पर सॉइल बहुत थिन है, शैलो है, बट वैलीज़ में और प्लेन एरियाज़ में जहाँ पर स्लोप लेवल पर आ जाती है, एक जेंटल स्लोप हो जाती है, स्टीप नहीं रहती, उस एरिया में सॉइल कवर थिक है। ओके, नेक्स्ट इज क्लाइमेट।
As we all know that climate is responsible for weathering the rocks. ठीक है, रॉक्स जो हैं वो क्यों वेदर होती हैं? ड्यू टू द climatic conditions. So here also climate factor like temperature and rainfall affect the soil formation. If there is high temperature and then it become the low, तो जो rocks हैं वो बहुत ज़्यादा break हो जाती हैं. In the area of high rainfall and extreme temperature, rocks are easily weathered. जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, रॉक्स easily break हो जाती हैं. There is an example of Rajasthan. Due to extreme difference in day and night temperature, rocks expand and contract, which result in quick formation of the soil. In daytime जो राजस्थान का टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो जाता है एंड एट नाइट इट इज़ वेरी मच लो. ठीक है, तो डे टाइम में रॉक्स एक्सपैंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और जब नाइट में टेम्परेचर डाउन हो जाता है तब ये श्रिंक हो जाती हैं and it results quick formation of the soil. And in the high rainfall regions, soluble rocks material easily get dissolved, washed away by the running water. जो soluble rocks होती हैं, जो easily water में dissolve हो जाती हैं, वो water के साथ wash हो जाती हैं, निकल जाती हैं, बह जाती हैं. Thus it affects the soil formation and it affects the soil formation. It forms the soil. Okay. So I hope it is clear to you all the climate. Now just move to the next, the vegetation cover. Vegetation cover. Vegetation cover means the plants. Okay. Sometimes plants grow in the cracks existing in a rock. Plants cracks में grow कर जाते हैं, जो rocks के बीच में cracks होते हैं उसमें वो grow हो जाते हैं, and the roots of these plants start penetrating in the cracks and make them wider. Roots हैं वो क्रैक के बीच में फैलना शुरू हो जाती हैं, उसे ब्रेक करना स्टार्ट कर देती हैं एंड उसे जो क्रैक है उसे वाइड करना स्टार्ट कर देती हैं. हैव यू एवर सीन द प्लांट्स दैट ग्रो इन द रूफ? हमारी छतों पर प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं और हम उन्हें तोड़ देते हैं क्योंकि वो वहाँ पर क्रैक्स ले आएंगे, हमारा जो लेंटर है, जो हमारी छत है, उसे तोड़ देंगे. ठीक है. सो सेम विद द रॉक्स, के प्लांट्स रॉक्स के क्रैक्स में ग्रो करते हैं बट वहाँ पर कोई उन्हें काटने वाला नहीं है, तो क्या होता है, वो वाइड कर देते हैं क्रैक्स को और उसे ब्रेक कर देते हैं. एज अ रिजल्ट क्रैक्स डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर पीसेस एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. Remains of dead and decomposed plants and animals provide humus to the soil, which enriches the fertility of the soil. The soil of densely forested area is generally very rich in humus content. अब फर्स्टली तो वेजिटेशन कवर जो क्रैक्स में ग्रो हो गई है एंड इट जस्ट ब्रोकन द रॉक्स, और रॉक के ब्रेक होने के कारण सॉइल फॉर्मेशन होती है. ओके. एंड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, अभी हमने जो ऑर्गेनिक मैटर समझा था. ठीक है. तो रिमेन्स ऑफ डेड और डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल विच एनरिचेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और ये सॉइल को फर्टाइल करते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस. ओके. ह्यूमस मेक्स द सॉइल fertile.
The soil of densely forested area is generally very rich in humus content. जिन एरियाज में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, the areas that is covered with forest, those are rich in humus content. वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमस है. इट मीन्स उस एरिया का जो लैंड है, जो सॉइल है, दैट इज़ वेरी मच फर्टाइल. ओके, so next, move to the next. Time gives maturity to the soil. Soil is a renewable resource and it takes thousands of years to develop a thin layer of soil on the earth's surface. Soil is not formed in a day. ठीक है, वन डे में तो एक बिल्कुल थिन लेयर फॉर्म होती है. सो वी कांट सी द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल विद आवर नेक्ड आइज. अपनी आइज से हम डेली फॉर्म होते हुए नहीं देख सकते. इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर टू फॉर्म द सॉइल. ओके, एंड टाइम गिव्स मेच्योरिटी टू द सॉइल. मेच्योरिटी मीन्स जो थिकनेस है, जो फर्टिलिटी है, वो सब सॉइल को टाइम के साथ साथ मिलती है. इट इज़ नॉट द वर्क ऑफ अ डे. फॉर एग्जाम्पल, नाइल डेल्टा एंड Ganga Brahmaputra delta have very deep and fertile soil and they are not formed in a day. It takes thousands of years to form these deltas or these plains. जितने भी प्लेन एरियाज़ हैं, हम अपने एरिया में नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स भी जो इंडस रिवर है और गंगा रिवर है उनसे ही बने हैं. वो गंगा रिवर एंड इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज carried silt and sediments and deposited on the plain areas and then our northern plains formed. ओके, तो ये प्लेन एरियाज जो हैं वो रिवर जो डिपॉजिट करती है यहाँ पर सिल्ट और सेडिमेंट्स, उनसे फॉर्म होते हैं. एंड इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. Okay, so time gives maturity to the soil. Is it clear? So I hope you get all 5 points: the parent rock, topography, climate, vegetation cover and time. Okay, so बच्चे just read these from your book. That's it for today. Thank you and have a nice day.